Actually, today we are here because of this in-house training program. As you know better, this program is being conducted by the schools, asked by the CBSE board. That's why we are here. And today's topic is effective communication skills. On this part, I want to say actually this word. Communication is the first thing in which we can do everything else, we can get everything else, where this is actually the main thing. And for this purpose there is the another part also, there is a body language, personality development, so many things are there. So on this part I wish to honor Mr. Rajesh Singh. Mr. Rajesh Singh on this part. For him, I want to say he is the renowned teacher in the IT sector, and he will deliver his own lecture on this part. We should welcome to Rajesh. Most welcome and Yes, sir. Yes, sir. Thank you. good morning all of you. Today I had the opportunity to say something upon the effective communication by my institutions and through the principal sirs. The topic will be that to explain about something effective communication. First of all, suppose that you are sitting here. I am delivering some things upon the particular topics. First of all, we should keep in mind how can we make capable to you interact with my topics. It should be run automatically whenever you enter the classes. The how can we interact with the topics to our students. And then you have to judge action and postures and body language. They are ready to accept my about the topic whatever I am going to speak in front of the listeners. It is already created automatically whenever you enter the classes. It should be already done before entering the classes. Then you can able to make your classes effective and you communicate effectively. And your any types of the advices will be effective for the each and every students. By yesterday, this given the name of the Rajesh Kumar Singh will speak tomorrow. The number of the colleagues waiting to listen what I am going to deliver. Why? Why it's happened? The same things you have to generate in your each and every classes among the heart of the students. This makes your class effective. And time to time, we should at least good listeners. Good listeners, being a good listener is one of the best ways to be a good communicator. अगर जीवन में गुड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको जीवन में गुड लिसनर बन करके बनिएगा तो आपका कोई पालन नहीं। हवा में कुछ बोल गए ना, हम उसके प्रॉब्लम्स तो बच्चे तो समझे नहीं और हम उसके कुछ से कुछ उसका इग्नोर करके निकल गए, फिर वो कल के अपेक्षा दूसरा दिन वो ज्यादा भारी पड़ गया। Due to the lacking of the effective communication, you want to escape from this the problems.
you are involved in your particular problems, not along with the classes and not along with the topics and all, not according to your circumstances. That's why it happens in your class. Am I right or not? You say something when you have the also your opinions. अब जाइए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अगर चलते हैं तो हर इंडस्ट्री का एक बादशाह होता है, चाहे जहां भी जाते हैं। बॉलीवुड बादशाह अमिताभ बच्चन, उसी तरह से जंगल का राजा सिंह, उसी तरह से हमारे जिंदगी में जितने भी इमोशंस हैं उसमें किंग इमोशन जो है वो मेरे एंगर है, गुस्सा। अब जो है उसी तरह से धरती पर जितने भी स्किल्स हैं उसमें टॉप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। We should understand and what is actually the skills and when will it be effective. Okay. What are the things actually in this? One colleague say something about the how can I generate the effective communication skills. One second I am going to come on this point also, but he already explained when he has started this topic. But one second I will repeat it. Don't worry about it. Sir, excuse me. Okay. Sir, he is asking that how to implement this effective communication Okay, skill okay. in education. And what is actually How to communication? input in classroom Okay. What based are on the things subject. actually? इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे हमारे कलीग्स जो पूछ रहे हैं इसको हम क्लास में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द कम्युनिकेशन स्किल्स इनटू द क्लासरूम्स एंड आल्सो कनेक्ट द स्टूडेंट्स अलोंग विद दिस। आप उसके साथ एग्जांपल्स को पेश कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द एग्जांपल अलोंग विथ योर थीम। And sometimes, apart from the theme, say something, some proverb related to the particular problems, and the some thoughts related from this topic or problems. By the various types of the ways, you can interact and you can create the effective through the effective communication into the students. उसको यहाँ पर दो घटना हो रही है। उस महात्मा को वही राजा, एक महात्मा को हाथी उससे खुश होकर के हाथी उसे पारितोषिक के तौर पर देता है, और वही राजा दूसरे महात्मा को बुलाता है तो वही हाथी के पैर तले उससे दबवा दिया। दोनों मगर बात सेम बोल के जाता है राजा को, लेकिन वही राजा को एक महात्मा के द्वारा बोला हुआ बात अच्छा लगता है जबकि मीनिंग सेम है, और वही मीनिंग रहते हुए उसके बाद सुनने में अच्छा नहीं लगने के कारण उसे हाथी के तले दबवा दिया जाता है। What happens it in the same things running behind this? यह होता है कम्युनिकेशन स्किल के अभाव में आप कहीं से कहीं चले जाते हैं। आप दो बंदा एक इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, आपका एक फ्रेंड आप ही का कुछ दिनों में बॉस बन जाता है। Why? वहां पता चलता है कि ये स्किल कहाँ काम करता है। ऐसे तो जिंदगी में कुछ समझते नहीं हैं। पहला चीज तब वह क्या हुआ घटना साधु वाला, उसमें क्या हुआ कि राजा को बताया कि आपके जीवित रहते हुए आपके परिवार के सारे सदस्य मर जाएंगे। अब राजा को लगा कि भाई तो बहुत गलत बात बोल रहा है, तो हमारे जिंदा रहते हुए सब मर जाएगा तो वो तो बहुत दुखद बात है। वही उससे जो थोड़ा अपने आप को हताहत समझ करके और मंत्री को आदेश दिया
कि इस महात्मा को जो है हाथी के पैर तले दबा दिया जाए और उसकी हत्या हो जाए। फिर कुछ दिनों के बाद महात्मा उनके घर से गुजर रहे थे, तो ताकि इन महात्मा को भी बुलाए और देखा जाए कि ये क्या कहते हैं, उनका बात कहा हुआ सही था कि नहीं। फिर वही महात्मा उनका हाथ देखने के बाद वो बोलते हैं कि राजा साहब, आपकी जो इस घर में जितने सदस्य हैं आपके परिवार में, उस बदमाश को भी आप एग्जाम्पल के साथ एप्रिशिएट कीजिए कभी अच्छे कामों पर, देखिए वो आपके लिए जान नहीं दिया तुम्हें। बोलिए सर। What is the actual meaning of effective communication skills, and how we can use effective communication skills in our school or other institute? Okay, sir. Most welcome to have this type of the questions. This, give the science that you are have the interest to know something extra from this the communication. Okay, sit down, sir. कम्युनिकेशन पर मैं बात करूँगा, उसमें अभी तो मैं 2-4 पॉइंट बोला हूँ, उसमें मैं अब आ जाइए सर कम्युनिकेशन। अब जो मैं थोड़ा थीम ट्रैक से मैं चल रहा हूँ, कम्युनिकेशन जो होते हैं स्किल्स, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल में फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं वह रिटन कम्युनिकेशन, and second one is the oral communication. टाइप कम्युनिकेशन का साउंड सुन लीजिए। रिटेन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन को हम लोग नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और थर्ड वन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और फोर्थ वन है विजुअल कम्युनिकेशन। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अब हम क्लास ले रहे हैं, और उसको बीच बीच में हम कुछ उस थीम से रिलेटेड मैंने कैसे बनाऊंगा सो मैं बता रहा हूं सर। हम उस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक पॉइंट आउट कर, मैंने बोर्ड पर एक 4 पॉइंट बना, जैसे कभी कम्युनिकेशन के 4 पॉइंट बनाए, 1 by 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। आप हमसे क्या हो गए, इंटरेक्ट हो गए, क्या हो, जिसको हम अगर नहीं लिख करके भी आपको हम बता सकते कि मैं तो जानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं जानता हूं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्यों हम बोर्ड पर लिखेंगे 4 पॉइंट, तब उसको हम बताएंगे। होता है वीक स्टूडेंट भी होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होता है, तो सभी हम टीचर को तो सभी स्टूडेंट को देखते हुए चल रहा है। अगर बोर्ड वर्क हम करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट तेज है, पढ़ने में अच्छा है, वो तो समझ ही लेगा, जो थोड़ा वीक भी है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है तो उसको नोट करेगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ वीक स्टूडेंट भी जो है बोर्ड पर से देख कर नोट करेगा। जैसे हम 4 बोलते हुए हम जो बता रहे हैं तो उसको स्टूडेंट नोट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होगा नोट उसको नहीं कर पाएगा, लेकिन वहाँ पर लिखते हैं तो उसको देखकर सभी स्टूडेंट वाले नोट करेगा। और उसके बाद उसको बाद में क्लास में तो पढ़ ही लिया, समझ लिया, उसके बाद घर पर भी उसको देख सकता है, समझने में सही होगा। लॉट ऑफ थैंक्स एंड फ्रीडम। तपन सर, यू हैव योर से समथिंग अबाउट दिस 2 tricks. Yes, So sir. what happens? Yes, sir. In my point of view, first you said about visual. So if I use that, one is not written, in another class is written. So like weaker students or any like students, if there is written something, so from that they can visualize something. Even they don't write, but it will be printed or engraved in their mind, so it will go for longer period of time. So suppose if any student writes that one, even he will not see, or he or she will not see, then he will not get any benefit, or she will not get any kind of benefit. But if he sees on blackboard, so it will benefit in future for that student. That's my opinion, sir. ओके सर, नाइस ओपिनियंस। एंड कहने का मतलब ये होता है कि ये उसमें से हमारा बेस्ट मेथड क्या है कि हम उसको राइट कर करके हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो हमारे साथ आई कांटेक्ट में रहेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पोर्शन है आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट कब बनेगा,
जब यहाँ लिख कर करके आप इसी में लगे हुए रहिएगा, वह उधर से हल्ला हो जाएगा। तो वह एक आई कांटेक्ट नहीं मेरा अगला पार्ट है, जिसका किसी और दूसरा दिन देखा जाएगा। ये अपना हिल नहीं रहा है, उससे चला गया। वो आता है। फिर दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ काम किस रूप में करता है वो बता आता है। वो देखता है कि रेसलिंग के बारे में वो भी कुछ नहीं जान रहा होता है, लेकिन वह पॉलिसी पेज के जाता है। Why? वो देखता है कि रेसलिंग जो हो रही है, तो वह इसका एक पॉलिसी है मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का है कि यू शुड ट्राई टू नो समथिंग अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग। ये नहीं है कि कुछ ना कुछ हमको हर एरिया में अगर जहां से जो मिलता है उसे प्राप्त करना चाहिए। न्यूटन ने बोला था, क्या बोला था? Whenever we meet any new persons, that person has the particular qualities and that qualities I want to learn from that person. न्यूटन कहा था कि मैं जिस किसी व्यक्ति से मिलता हूँ वह किसी न किसी मामला में हमसे आगे होता है और वही मैं सीखता हूँ, इसलिए मैं विद्वान हूँ। ये नहीं कि हम न्यूटन हैं तो हमको इससे सीखने की जरूरत नहीं है, इस अप्रोच से जिएगा तो न्यूटन नहीं कहता। आज आपको हम लोग टीचिंग प्रोफेशन से हैं तो टीच करते हैं। अब हम घर पे गए, अभी सपोज दैट इस छुट्टी में गए, it is not on the track you are thinking about, it is on the track I am giving the examples of the related the effective communication visually उसको बोले नहीं, थोड़ा टाइट दिखाई दिए इसको, वो आराम से डाउन। ये क्या है? मेरा कम्युनिकेशन के बीच में, हम टीचिंग करने के बीच में यह विजुअल, यह मेरा जो है विजुअल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले हुए आपके बॉडी लैंग्वेज से वह आपका काम डन होता है, उसका यूटिलाइज करना बताए, उससे रिलेटेड में इंटरनेट बनाए, उस सबको एक हम विजुअली बोर्ड पर डिस्प्ले करें। और क्या हो गया? बच्चों का इंटरेक्शन जो हो गया उसका परसेंटेज डेवलप हो गया। वो देखा भी क्या सर, पीछे वाला भी उत्सुक है देखने, तो पहले उसमें उत्सुकता किसी न किसी आइटम से आप उसमें डेवलप। हाँ, आपका जो हम जैसे कि अभी हम आपको टॉपिक को चला रहे हैं, सपोज दैट आपका एक हिंदी का टॉपिक है प्रेमचंद के फटे। अब प्रेमचंद के फटे जूते को हम अगर टीच कर रहे हैं सपोज दैट, तो उसको हम पूछेंगे कि एक जूते की कीमत में 8-10 टोपियां खरीदी जा सकती है, तो वह वैल्यूएबल कौन है? जूता है या वह टोपी है? बच्चे लोग पहले आपसे जुड़ना चाहेंगे कि आप क्वेश्चन राइज किए, टॉपिक लिखे और उससे रिलेटेड अभी हम उस पर गए नहीं है उसके अंदर, और हम उससे यह डाल दिए, यह ऐसा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन जो कि थीम पर भी है और समाज के लेवल से ही मेरा पैरेलल चल रहा है। अब यह क्वेश्चन को रखे, बच्चे ने अपना अपना मंतव्य दिया, कोई क्या जूता बना है, कोई बोला टोपी बना है। और उसके बाद है मेरा वर्ड इंजीनियरिंग, बहुत सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारा है, लेकिन वर्ड का भी इंजीनियरिंग होता है। किस वर्ड को कहां से उठा के कहां रख देने पर वो अर्थ का अनर्थ कर सकता है। एक सामान्य सा वाक्य जो होता है, जैसे कि जैसे हिंदी का कॉमा, एक सेंटेंस वर्मा सर अगर लेते हैं कि गाड़ी रोको मत जाने, अब रोको पर कॉमा लगाते हैं, and then after the eye contact and the body language already explained and match the mood वर्मा सर। हम आए पढ़ाने के लिए, टीचर है, हम किसी मूड में, हमारे घर में कुछ ऐसा वाक्य हो गया, सब हो गया,
या कोई बच्चे के परिवार में कुछ हो गया, बेचारा वो भी आया हुआ है। अगर हम अच्छे मूड में हैं तो हम अपने अच्छे मूड के हिसाब से पढ़ा दिए। वो खराब मूड वाला बेचारा हमारे टॉपिक पर अगर नहीं ध्यान दिया, ऐसा होता है, तो हम उस पर उतारू हो जाते हैं मानने के लिए, चाहे कि तुम पढ़ता ही नहीं है, डायरेक्ट उसको बोल देते हैं कि तुम पढ़ता ही नहीं, ये ऐसा ही करता है। अब वह बच्चे के विचारों में यह भावना आ जाती है कि हर काम के लिए जो है हम वो आपसे वो पार्टिकुलरली उस तरह से वह अपना एक इमेज बना लेता है अपने माइंड में। अब एक स्कूल में मान लिया कि कोई बच्चा टेबल कुर्सी प्रॉपर स्माइल, आप एकदम मूडी होकर के क्लास ले रहे हैं, तो आपका टॉपिक सुंदर होते हुए भी बच्चे का आपका इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा। यह भी चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और प्रॉपर स्माइल के बाद जो है अवॉइड द ब्लूपर्स। ब्लूपर्स इसमें जो है अवॉइड यह एक मेरा जो है बहुत सारे बच्चे हैं छोटी गलतियां कर दिए, हम उस पर ज्यादा उतार माने छोटी गलती को बड़ा करते जाते, और बेचारा तो गलती भी नहीं होता है, कोई थर्ड पर्सन का गलती होता है, ऐसा होता है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे कि शीशा, एक पत्थर के मारने पर शीशा फूटता है, तो क्वेश्चन शीशा से पूछा जाता है कि क्यों फूटा, ऐसा होता है हम लोगों के साथ। और जो गुनाहगार है वो सीधे निकल गया होता है। अब बच्चा हुआ जो बेचारा जो फूटा है वह दोषी करा दिया जाता है। दोस्त पत्थर की थी और जवाब शीशे से पूछते। और ये आदमी ऐसे हैं कि यह जो है चीनी की वजह से कर। अब जो है कोई भी बच्चा अगर गलती किया होगा और उसको हम लेके चले गए, सर ये गलती किया है, अब वो बेचारा इंप्रेस्ड इतना हो गया, डिप्रेस्ड, कि वह अंत में जैसे पुलिस कोई बदमाश कहा के साथ हम उसके साथ जी रहे हैं, तो वो उसके साथ सही नहीं। हर परिस्थितियों को चेंज कीजिए, उसके विचारों को थोड़ा अपने आप में आत्मसात कीजिए और उसको मोटिवेट कीजिए, एप्रिसिएट कीजिए। देन आफ्टर है आपका मैच का मूड एंड अवॉइड छोटी छोटी गलतियां को, अब उसको अवॉइड कीजिए। अब मान लीजिए कि अवॉइड करने के लिए कीजिएगा, आपका एकदम पॉजिटिव क्लास चलेगा, नो प्रॉब्लम। देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, आप इफेक्टिव बनाते हैं साउंड को कि फ्रीक्वेंसी जहां आपका अपवर्ड डायरेक्शन में साउंड होना चाहिए, कहां डाउनवर्ड में होना चाहिए, पैरेलल चले जा रहे हैं, वो लड़का बोल क्लास में नहीं सुनेगा। तो आपका जो है साउंड जो है, अगर मान लिया जाए कि सपोज दैट कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है, ढोलक का साउंड कुछ निकल रहा है, हारमोनियम का कुछ निकल रहा है, कैसे होगा कुछ निकल रहा है, और वो सुनने वाला को कोई प्रभावित ही नहीं करेगा, क्योंकि सब अपने राग में चल रहा है, किसी के साथ किसी का तालमेल है ही। तो अगर वही इंस्ट्रूमेंट तालमेल के साथ एक उठाता है और दूसरा पकड़ता है और तीसरा फिर आगे बढ़ाता है, उसके साथ चलता है, तो गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्पीकर्स एंड द लिसनर्स। कोऑर्डिनेशन हमारे आपका कोऑर्डिनेशन कब बना, जैसे हम बच्चों से कब बना, जब हम फर्स्ट पॉइंट बताए थे कि गुड लिसनर्स, बीइंग ए गुड लिसनर्स is one of the best ways to be the good coordinator। तो हम उसके अगले पॉइंट के हिसाब से हम क्या करेंगे कि वह आपके क्रिएटिंग द गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्पीकर्स एंड द लिसनर्स, यानी कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की भावना आनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, उसके दर्द के नजदीक पहुंचने की प्रयास करनी चाहिए। होमवर्क आप दे दिए, वो अच्छी चीज है, उसको भी दीजिए। तो मेरा टाइम भी सर इंडिकेट कर रहा है, तो लॉट ऑफ थैंक्स। Thank you, Rajesh sir, for your magnanimous speech.
and I'm sure that we are all enlightened by his speech, the way he took us through many journeys like Sudarshan Chakra, empathy, circumstance, food source, and word sequence, engineering. We have heard earlier that engineering, only we use that word in the field of engineering, but today we know that word also, here also we can use our engineering talent by using words sequence by sequence and where to apply which particular word. Thank you, sir. Okay. And by saying that, so today we will finish our that session, in-house training session, and I would like to call Principal Sir to provide certificate. Please, Principal Sir. Anupama Kumari, please come. Manas sir, please come here and take your certificate. Manish sir, please come here to collect your certificate from Principal sir. Now, Videsh William Khan sir, please come to collect your certificate. Atul sir, please come to collect your certificate. Hariprasad Garba sir, please come to collect your certificate. Okay, thank you everyone to be here today on that great day. Thank you everyone. Thank you. Thank you Principal sir for providing certificates to all. संगीता रॉय नहीं सारे को समझे नहीं जो हमें सबसे मेन चीज़ है मैं ये कह रहा हूँ जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि मेन चीज़ ये हाईलाइट करना है संगीता राजेश कुमार सिंह रेवान सिंह ये कृति इंदु कुमारी तपन वर्मन Thank you sir. सर्टिफिकेट मिलता है दिखाना चाहिए सामने में कैप्चर होगा Chandan sir, please come here to collect your certificate. I request Vijit Datta sir to come and to collect certificate. प्रेमदा मैम बोल दीजिए जो बात आप कर बाद में बोलेंगे ना सभी बोल के क्या Praveen sir, I would like to call you and to provide certificates to the teachers. नाम किसी और का नहीं होगा भाई बात गलत चीज़ तो बोलना चाय साइकोलॉजी वाले में मिला ना कंडक्ट ने किया ना तो लाइफ स्किल नहीं Amal Mandal sir, please come to collect your certificate.
चीज है ना। बोले कोई और नाम किसी और का बोलेंगे सर। Priyamada ma'am, please come and collect your certificate. जो अनाउंस करता है, जो बुलाता है, उसको करना Please come to collect your certificate. Ranjan Kumar Jha, please come to collect your certificate. Mr. Aman Mandal. Mr. Chandan Karmakar, please come to collect. अजीत सर, वो सर्टिफिकेट आज नहीं मिलेगा। मिलेगा ना? Priyamada ma'am, please come to collect your certificate. बोल दीजिएगा बोल। Now I would like to call Preeti ma'am to give certificate. Please ma'am come. Okay, now I would like to call Dwarkanath Mishra sir. Please come to receive your certificate. Now I would like to call Vipin Kumar Mishra sir. Please receive your certificate. Okay, next coming Ajit Kumar sir. Please come and